A very good afternoon. I'm Pallavi from Avyan IS Academy, and I'm here bringing you another session for your upcoming GATE exam 2024. So in last series, like I told you in the last video, that we'll be making a series which will help you in your performance in your GATE exam 2024. Okay, so in the last video we were talking about the rules, dates, the syllabus and all those important overview which we require before we decide that we are giving this exam. So now once you have filled up the form, which are still open and you can fill them up, so once you decide that you are going for this exam, then this is the video for you. See, it is hardly any video, any questionnaire is available on it. So I'll be solving some questions every day with my video, and it will be helping you understand that what kind of questions are coming in your exams. So I'll be solving all the previous year questions first, and then some hot topics later on once the exam will be coming very nearby related to what type of questions have been asked. Okay, सो जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हीं जैसे क्वेश्चंस हम आगे आपके लिए लेकर आएंगे. अभी की पीपीटी जो है आज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डील करते हुए है. वी आर नॉट टेकिंग मोर क्वेश्चंस, बट जो क्वेश्चंस लेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, अलग अलग फील्ड से क्वेश्चंस होंगे, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि हम जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, हाउ इम्पॉर्टेंट दैट एग्ज़ाम इज़ एंड हाउ what kind of questions are being asked on frequent basis in these exams. So our series is Daily Dose for GATE Exam 2024. So please like, subscribe and share, तभी हम आपके लिए daily dose लेकर आ पाएंगे. And this daily dose is very very important. And once I'm saying it is very important, that means it is very very important. Okay, so let's start. Okay, so directly starting from the questions, not wasting any time. First previous year question जो आपसे पूछा गया है वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा. So history is not made only in a statecraft. Its lasting results are produced in the ranks of the learned man. Name the play from which the above excerpt has been taken. तो आपको एक कोटेशन दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि ये एक्सर्प्ट जो है ये किस प्ले से लिया गया है. भाई इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हमसे ये कौन सा टॉपिक पे पूछा जा रहा है. सो ये हमारा एक अपना इंडियन राइटर है, गिरीश कर्नाड तुगलक. यस, दिस इज द आंसर, गिरीश कर्नाड तुगलक. गिरीश कर्नाड आजकल एग्जाम्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ see Girish Karnad, he recently died, not very recently but in 2000s only he died. We have been seeing his movies. Once I'll go on my next screen, then you'll be understanding that who was Girish Karnad. आपकी जो सलमान खान की मूवी आई थी टाइगर, he was there in that movie also. See, he was an actor also and he was a writer also, and he had been performing some very, he has been writing some very important plays. ठीक है, तो उसमें से एक तुगलक है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सॉरी, उसमें एक तुगलक है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आगे चलते हैं. गिरीश कर्नाड. सो वंस यू सी हिज पिक्चर you will understand that you have seen him, right? इसको देखकर जो भी मूवीज़ का फ़ैन है, आई एम ऑल्सो अ वेरी बिग फैन ऑफ मूवीज़, तो इसको देखकर हमें पता चल जाएगा कि ये ही वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. एंड लेटली काफ़ी एग्जाम्स में गिरीश, इवन नेट के एग्ज़ाम में लास्ट ईयर इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, स्टेट एग्जाम्स में इनके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है. सो ही वॉज एन कन्नड़ राइटर. ठीक है, all the works, most of the works were in Kannada. ठीक है, once you will be seeing the name Haya Vadana. ठीक है, that is a very important work. Then is Tughlaq, जिसके ऊपर 1964 में he wrote Tughlaq, and that quotation GATE exam में जो आया था was from his work Tughlaq. ठीक है, सी हमें ना सब कुछ नहीं पढ़ना है. हमें ये देखकर हमें लगेगा कि अब तो हमें कन्नड़ राइटर्स भी पढ़ने हैं और रीजनल लैंग्वेज राइटर्स भी इम्पॉर्टेंट है. सो व्हाट टू डू? सो प्लीज़ फॉलो अस, सब्सक्राइब अस, दिस इज़ द चैनल. हम धीरे धीरे कर कर आपको हर क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड क्या क्या आपने करना है वो आपको टाइम टू टाइम बता पाएंगे. एंड इट वुड बी वेरी ईजी फॉर यू टू
गो अहेड विद योर प्रिपरेशंस, कैसे तैयारी करनी है। अब तुगलक में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जो हमें देखनी है, ठीक है। हया वंदना अपने आप में वी शुड नो द नेम ऑल्सो कि इस राइटर ने कौन कौन से वो लिखे हुए हैं। देन इज तेली डंडा, दैट इज अ बुक जिसके ऊपर गिरीश गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1994। ओके, तो 1994 में ही गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड। वी शुड नो व्हाट ऑल अवार्ड्स, सी वी बिकॉज वी हैव लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम, हम सब कुछ डिस्कस नहीं कर सकते हैं, बट आई कैन ऑलवेज हेल्प यू, आपको बता सकती हूँ व्हाट ऑल अवार्ड्स मिले। एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है किसी एग्जाम में, दैट गिरीश कर्नाड, देयर वर 4 नेम्स ऑफ द अवार्ड्स, ठीक है, एंड दे वर सेइंग विच अवार्ड वाज नॉट अवॉर्डेड टू गिरीश कर्नाड। सो आपको ढूंढना था कौन सा अवार्ड नहीं मिला है इन्हें। सो ये ढूंढने के लिए आपको ये भी तो ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा अवार्ड मिला है, राइट। सो you should know the awards, so you should do a little history। See, जब भी हम कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, बस उसको सॉल्व करने के लिए सॉल्व मत करो। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है, क्वेश्चन पेपर टाइम दो, टेक आउट एटलीस्ट हाफ एन आवर एवरी डे। चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो क्या ध्यान रखना कि अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछा है, सपोज लास्ट हमसे कोटेशन पूछी, वो तुगलक वर्क गिरीश कर्नाड की थी, ठीक है। सो वी शुड रीड अ लिटिल मोर अबाउट द राइटर। अगर हमने गिरीश कर्नाड के बारे में पढ़ लिया है तो दैट क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। अगर हमने बस पढ़ा इसका आंसर तुगलक है, नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं, ये हम बस ऊपर ऊपर से कर रहे हैं। और ऊपर ऊपर से पढ़ाई कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम किसी और के लिए तो कर नहीं रहे हैं, ये पढ़ाई हम अपने लिए कर रहे हैं, राइट। सो अपने लिए जब कोई चीज़ करो तो उसमें थोड़ा सा एफर्ट और लगा दो, सो यू विल बी द अमंग द स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली क्लियरिंग दैम, ठीक है। जो थोड़े से नंबर से रह जाते हैं, वो यहीं तो रह जाते हैं कि वो डिटेल में इन चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। देन आदथा मनुष्य जो है इज़ द ऑटोबायोग्राफिकल वर्क। सो हमसे पूछ सकते हैं कि 4 नाम दे देंगे कि इनमें से गिरीश कर्नाड जी का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क कौन सा है, तो हमें नाम पता होना चाहिए, राइट। सो इसलिए दिस इज़ अ स्मॉल रिवीजन जो मैं आपको दे रही हूँ कि आप साइड बाय साइड करते रहो, बस बिकॉज टाइम रिस्ट्रेंट है, मैं आपको 10-10 15-15 मिनट एक राइटर पर नहीं दे सकती हूँ। यू जस्ट रिक्वायर 10 to 15 मिनट्स फॉर एवरी राइटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, Who among the following popularized the term objective correlative? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके नेट एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके गेट एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर ना मैं इतने एग्जाम्पल्स और स्टोरी देकर इसको समझाती हूँ, आई विश मैं आपको समझा पाती, बट दिस क्वेश्चन हम इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, मैं आपको 5-10 मिनट में नहीं इसको जस्टिफाई कर सकती हूँ। सो वी विल बी डूइंग ओनली द आंसर, बट इफ़ यू रियली वॉन्ट प्लीज़ राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, मैं आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की अलग से वीडियो बना सकती हूँ, ठीक है। सो वेन एवर वी टॉक अबाउट द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, दिस टर्म जो है इट इज़ बाय T.S. Eliot, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तो हमें कोई ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव बोले ना, हम बोले ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव T.S. Eliot साथ में, ओके। सो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, लेट्स मूव अहेड। सी जो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे मैं आपको समझाना चाह रही थी कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए तो मैं आपको थोड़ी डिटेल स्लाइड दे सकती हूँ, बट अगर आपको कोई और टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ हमें अपने कमेंट सेक्शन में लिखें, सो दैट वी कैन डू समथिंग एंड we'll be motivated to make more videos for you, okay. So which of the following critics preferred Shakespeare comedies to his tragedies? अब भाई हमें पता है that Shakespeare was a very famous dramatist, a very famous writer, ठीक है। तो शेक्सपियर का कौन सा ऐसा इनमें से राइटर है जो उसकी कॉमेडीज प्रेफर करता है? वो कहता है ट्रेजेडीज जो है ना वो शेक्सपियर की अच्छी नहीं है, बट आई प्रेफर कॉमेडीज मोर। जो भी कॉमिक वर्क शेक्सपियर लिख रहा है, आई प्रेफर दैट वर्क मोर। सो इनमें से वो कौन सा है? अब देखो, याद करने का मैं आपको एक तरीका बता दूं। शेक्सपियर जो है, हिज नेम स्टार्ट्स विद एस, ठीक है, एंड सैमुअल जॉनसन्स नेम स्टार्ट्स विद एस।
तो सैमुअल जॉनसन वॉज द पर्सन जो कहता है कि शेक्सपियर जो है ना वो कॉमिक वर्क्स बड़े अच्छे लिखता था, कॉमिक वर्क्स जो थे ना वो बहुत अच्छे लिखता था, बट ट्रेजेडीज जो थी ना बेकार थी शेक्सपियर की। मैं नहीं कहती हूँ, ये सैमुअल जॉनसन कह रहा था, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दिस, ठीक है। सो ही वॉज सैमुअल जॉनसन, एज यू कैन सी ही वॉज अ वेरी एविड रीडर, ठीक है। सो जॉनसन बिलीव्स दैट शेक्सपियर जनरल आइडिया ऑफ हिज ओवरऑल डिजाइन ऑफ हिज प्लेस इज द सेम। वो कहता है कि ऊपर ऊपर से उसके सारे प्लेज ना बड़े अच्छे हैं, जनरल डिज़ाइन जो है ना सबका सिमिलर है, ऐसा कुछ अलग नहीं है, ठीक है। चाहे वो कॉमेडी हो चाहे वो ट्रेजेडी हो, ऊपर का जो उसका वो है स्ट्रक्चर है, आप देखोगे किंग क्वीन के बारे में है, उसकी उससे शादी हो जाती है, उसकी उससे हो जाती है, कुछ 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 होता रहता है, या कोई मर जाता है, जनरल आइडिया इज द सेम, ठीक है। In tragedy, he often writes with great appearance of toil and study. What is written at last with little felicity, but in his comic scenes, he seemed to produce without labor what no labor can improve. Basically ना, इस पूरी लाइन को समझाने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। बेसिकली क्या होता था कि जनरली पहले ये माना जाता था कि काफ़ी राइटर्स ये मानते थे कि जो भी हम राइटिंग्स करते हैं ना वो हमारे अंदर इनहेरिट होती है, ठीक है। कोई हमें सिखा नहीं सकता है कि हमें कॉमिक राइटिंग कैसे लिखनी है, ट्रेजेडी कैसे लिखनी है, इसका कोई कोर्स हमें नहीं सिखा सकता है, ये अंदर से होता है। जिसके अंदर होता है ना राइटिंग का स्किल, या नॉट राइटिंग, हम अलग जॉनर्स को एक्सप्लोर करें, फोटोग्राफी देखें, हम एस्ट्रोलॉजी देखें, जिसके अंदर से एक वो आता है कि दैट आई कैन डू इट एंड ही इज़ डूइंग दैट फ्लॉलेसली, कोई एफर्ट नहीं लगाना है, दैट इज़ द फील्ड फॉर यू, जनरली यही कहा जाता है। तो यहाँ पर सैमुअल जॉनसन जी भी यही कह रहे हैं हमें कि ट्रेजेडीज़ जब शेक्सपियर लिखते थे ना तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता था शेक्सपियर को ट्रेजेडीज़ लिखने में, ठीक है। वेराज जब वो कॉमेडीज़ लिखते थे ही वॉज डूइंग इट विदाउट एनी एफर्ट। जब आप कोई काम बिना एफर्ट के कर रहे हो ना, उसका क्या मतलब हुआ, उसका ये मतलब हुआ कि वो काम आपके अंदर इनहेरिटेड है, आपको उसमें कोई मेहनत करनी ही नहीं पड़ रही है, ठीक है। ही सीम्स टू प्रोड्यूस विदाउट लेबर, बिना एफर्ट के वो ये काम कर सकता है। और व्हाट नो लेबर कैन इम्प्रूव, मतलब कोई भी मेहनत इसको इम्प्रूव नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारे अंदर ऑलरेडी ये घुसा हुआ है, ठीक है। ही सिंग ट्रेजेडी ही इज ऑलवेज स्ट्रगलिंग, वो हमेशा स्ट्रगल करता रहता है, लिखता है चेंज करता है, लिखता है चेंज करता है, बट कॉमेडीज उसके अंदर से आती हैं, ठीक है। इन हिज ट्रैजिक सीन्स देयर इज ऑलवेज समथिंग वांटिंग। ट्रेजेडी सीन्स हम जब भी पढ़ते हैं ना हमें लगता है कि ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, बट कॉमेडी सीन्स हमेशा इतने परफेक्ट होते हैं ना कि हमें हमेशा लगता है कि इसके अंदर हम कुछ ऐड कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वाई इसने ये सारी चीज़ें देखकर इसने डिसाइड किया कि शेक्सपियर के अंदर जो है वो बसा हुआ है कॉमेडी, ठीक है। कॉमेडी के वर्क्स वो आंख बंद करके भी लिख सकता है, बट ट्रेजेडीज में उसको बड़े एफर्ट लगाने पड़ते हैं, तो ट्रेजेडीज बेकार है, ठीक है। बेकार मतलब ही प्रेफर टू रीड कॉमेडीज मोर फॉर शेक्सपियर, ठीक है। सो सी, अब जैसे ये सिंपल क्वेश्चन है, हम इसमें हम पढ़ के सैमुअल जॉनसन पे टिक करके आगे जा सकते थे, बट क्योंकि हमने और डिटेल में जाना, हमने क्यों वो ऐसा कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे सेम थोड़ी पूछेंगे, राइट। जब 3-4 ही गेट एग्जाम इंग्लिश लिटरेचर में हुए हैं, दे विल नॉट रिपीट द क्वेश्चन, बट दे माइट आस्क यू डिफरेंट क्वेश्चन इन अ डिफरेंट वे ऑन इट, राइट। तो सैमुअल जॉनसन पे पूछ सकते हैं कि आपको 4 पॉइंट्स दे दें कि इनमें से कौन से पॉइंट्स जो हैं वो सैमुअल जॉनसन बिलीव करते थे कि इसकी वजह से उनकी कॉमेडीज बेटर थी ट्रेजेडीज से, ठीक है। एंड प्लस हमें एक जनरल ओवरव्यू भी मिलता है, चीज़ें समझकर आगे बढ़ना एक सही तरीका है क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने का। और हमारे जो आज के वर्क्स है ना वो इसी चीज़ के लिए है कि मैंने क्वेश्चंस, आई हैव टेकन लेस क्वेश्चंस, बट आपको एक तो पता चलेगा कि किस किस फील्ड से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का तरीका क्या है। चाहे आप 5 क्वेश्चन करो दिन में, चाहे आप 10 क्वेश्चन करो, बट अच्छे से करो। अच्छे से नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन क्रेडिटेड विद लेइंग द फाउंडेशन ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर बाय रशियन फॉर्मुलिस्ट।
सी रशियन लिटरेचर, रशियन फॉर्मलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. हम ये सारे एकदम से स्टार्ट करके वीडियो में नहीं ख़त्म कर सकते हैं. अगेन आप चाहते हो कि अगर मैं ये आपके लिए लेकर आऊँ, सो देन प्लीज़ राइट इन आ कमेंट सेक्शन. ठीक है, इसका आंसर हमारा अलेक्जेंडर वेसेलोव्स्की है. ठीक है, अभी मैं इसका आंसर बता रही हूँ. ही इज़ अलेक्जेंडर. ठीक है, ही वॉज अमंग द फॉलोइंग हु इज़ बीइंग क्रेडिटेड फॉर लेइंग द फाउंडेशन. जैसे हम एक दीवार बनाते हैं ना, उसके नीचे हम पूरा अच्छे से ब्रिक रखते हैं, कहते हैं ना नींव स्ट्रांग होगी तो पूरा घर स्ट्रांग होगा. तो वैसे ही कंपैरेटिव लिटरेचर रशियन फॉर्मलिज्म में इसने उनकी फाउंडेशन ले करी थी. ठीक है, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ इट. ओके, मिस्टर अलेक्जेंडर. सी अब देर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन. आपसे क्रिटिसिज्म के ऊपर आ गया, आपसे रशियन फॉर्मलिज्म में आ गया, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव पूछ लिया, इंडियन राइटर आपसे पूछ लिया. ठीक है, अब हम जाते हैं आपसे, आपको बेसिकली कॉम्प्रीहेंशन काइंड ऑफ अ क्वेश्चन है ये. आपको वर्क का एक लाइन दे रखी है एंड इस पोइट्री को समझकर आपको आंसर सॉल्व करना है. सो रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड मार्क योर करेक्ट ऑब्जर्वेशन. कि लाइन्स को पढ़कर आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है. पढ़ते हैं. टेक माई शर्ट ऑफ एंड गो इन देयर टू डू द पूजा. नो थैंक्स, नॉट मी, but you go right ahead if that's what you want to do. Give me the matchbox before you go, will you? I will be out in the courtyard where no one will mind it if I smoke. So basically it is a conversation between two people, right, about smoking and about everything. अब हम इसके ये पढ़ते हैं, मैं आपको तरीका बताती हूँ, अब बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर लोगे. द पोम इज, सी पोएम नहीं बोलते हैं, पोम बोलते हैं. दैट इज अ न्यू दिस थिंग विच एवरी वन शुड नो. हम पोएम नहीं बोलते हैं, पोएम लिखते पोएम है, लिखते बोलते हम इसे पोम है. ओके, द पोम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन ओड. क्या ये ओड की फॉर्म में लिखी हुई है? ओड क्या होता है? जब हम किसी को, जैसे हम पढ़ते हैं ओड टू द वेस्ट विंड, तो हम किसी को रेफर करके उसके बारे में वर्क लिख रहे हैं. जैसे यहाँ पर वेस्ट विंड पर हम वर्क लिख रहे हैं, तो ये किसी चीज़ को रेफर तो नहीं हो रही है, क्या पता हो रही हो आगे पीछे, बट हमें क्या मतलब है, सिर्फ जो हमें लाइंस दी हुई हैं इसको देखकर हम ये नहीं निकाल सकते हैं कि ये ओड है या नहीं है. ठीक है, द पोएम इज स्केप्टिक इन नेचर. स्केप्टिक मतलब थोड़ी, जैसे हम कहते हैं ना करें ना करें, क्यों करें, सो ऐसा भी नहीं लग रहा है, राइट. द पोएट यूजेस सररियल एंड एस्टॉनिशिंग इमेजेस. ऐसी कोई सररियल इमेज है इसके अंदर कि बिल्कुल कुछ अलग से ही बियॉन्ड इमेजिनेशन इमेज आ गई? नो, इट इज़ बेसिकली नॉर्मली टॉकिंग, इफ आई स्मोक, यू स्मोक, गिव मी अ लाइटर, जनरल इमेजेस है. ऐसा कोई सररियल या कोई एकदम बियॉन्ड इमेजिनेशन इमेजरी तो नहीं यूज हुई हुई है. ठीक है, सो ये भी नहीं होगा. The poem expresses a rebellious attitude. Is it? Yes. अगर आप इसको पढ़ो तो it is showing rebel. So your answer is this. Eliminate करो. ठीक है, एलिमिनेट करके आपको आंसर्स मिलेंगे. तो मोर एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, उतना ही आप इनको समझ के कर पाएंगे. ठीक है, और आपको लिटरेरी टर्म्स भी पता होनी चाहिए इससे. ठीक है, आगे चलते हैं. ओके, सो इसमें मैंने आपको क्वेश्चन नहीं दिया है, बट अरुण कोलातकर जो है, ही वॉज इन इंग्लिश एंड मराठी राइटर. ठीक है, बट काफ़ी बारी इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. सो मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ. कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज़ मिला था इन्हें 1997 में, एंड ही इज़ वन ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस बायलिंगुअल पोएट्स. बायलिंगुअल पोएट मतलब हु इज़ राइटिंग इन मोर देन 2 लैंग्वेजेस. ठीक है, अरुण कोलातकर. ओके, दिस इज द क्वेश्चन. एक्चुअली उससे रिलेटेड एक चीज़ थी तो आई थॉट आपको बतानी चाहिए. बायलिंगुअल लैंग्वेज एक्विजिशन रेफर्स टू. बायलिंगुअल लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होती है? सी आपके ऊपर लिंग्विस्टिक्स के ऊपर आपके क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, कितने क्वेश्चन कितने उस पर आएंगे दैट इज़ नेवर एवर क्लियर. कभी किसी पे ज़्यादा आ जाते हैं, कभी किसी पे कम आ जाते हैं. सो लिंग्विस्टिक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, जो आपको
इस पूरे उसको समझने के लिए करना पड़ेगा, बट बिकॉज ऑफ द टाइम रिस्ट्रेंट मैं आपको ज़्यादा टॉपिक्स नहीं समझा पाऊंगी। हालांकि मैं आपको आज दो इम्पॉर्टेंट टर्म समझाऊंगी, विच इज़ क्लेफ्ट एंड सूडो क्लेफ्ट। इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, दीज आर ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ओनली, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो इन द गिवन एग्जाम्पल कॉलम वाई आर एग्जाम्पल्स ऑफ डैश सेंटेंसेस। अब ये पूछ रहे हैं हमें, एक कॉलम में एक्स एग्जाम्पल्स दिए हैं, एक कॉलम में वाई दिया हुआ है, तो वो कह रहे हैं वाई जो दिया हुआ है ये इनमें से किस टॉपिक के वो हैं। अब अगर हम इसको जनरल पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते हमने देखा चलो भाई इसका आंसर ना क्लेफ्ट है, ठीक है। आगे आप देखते हो, आप पेपर देने जाते हो, आपसे इसी टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं था आपने क्लेफ्ट पे टिक क्यों किया, ठीक है। आपने आंसर तो पढ़ लिया। लिंग्विस्टिक्स में हर एक टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको सेम एग्जाम्पल थोड़ी देंगे, दे विल गिव यू सम डिफरेंट एग्जाम्पल, सम डिफरेंट स्टेटमेंट्स, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वो क्लेफ्ट है, वो सूडो क्लेफ्ट है, गैपिंग है, टॉपिकलाइजेशन, विच काइंड ऑफ दिस थिंग इज स्ट्रक्चर इज यूज। तो आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। सो टुडे वी विल बी कवरिंग अप क्लेफ्ट एंड सूडो क्लेफ्ट, ठीक है। क्लेफ्ट एंड सूडो क्लेफ्ट में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, दे आर वेरी मच रिलेटेड एंड वेरी मच डिफरेंट, ठीक है। येस, हियर क्लेफ्ट इज यूज, मैं आपको एग्जांपल्स पढ़ के सुना देती हूँ, फिर नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाती हूँ क्लेफ्ट क्या होता है। इट इज द कैट दैट चेज द रैट, इट इज द कैट, सी इसमें यहाँ पे क्या सेंटेंस था, द कैट चेज द रैट, और यहाँ पर क्या आ गया, इट इज द कैट दैट चेज द रैट। फिर एक्स में लिखा है द एथलीट ब्रोक द रिकॉर्ड, इट इज द एथलीट दैट ब्रोक द रिकॉर्ड, ओके। अब इसको ज़रा डिटेल में समझाया जाए क्लेफ्ट क्या होता है। क्लेफ्ट जो है इसका मतलब हम वी आर डिवाइडिंग अ सेंटेंस इन टू पार्ट्स। कैसे? फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम, रुको, लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल। सुलेखा सोल्ड हर बुक्स, ये एक सेंटेंस है, दो पार्ट में तो डिवाइडेड नहीं है, एक ही सेंटेंस है, कोई एम्फेसिस नहीं है, एक जनरल सेंटेंस है। सुलेखा ने अपनी बुक्स बेच दी, सुलेखा सोल्ड हर बुक्स, ठीक है। अब हमने अगर इसे क्लेफ्ट सेंटेंस बनाना है तो हम इसे डिवाइड करेंगे, कैसे? इट वॉज सुलेखा, इट वॉज सुलेखा एक टर्म में, हु सोल्ड हर बुक्स, वी स्प्लिट द सेंटेंस इन टू, एक सेंटेंस को दो भाग में डिवाइड कर दिया, अलग कर दिया। सुलेखा सोल्ड हर बुक्स, सो इट वॉज सुलेखा, वो सुलेखा थी जिसने अपनी बुक्स बेच दी, ठीक है। एक और इसका हम कर सकते हैं, इट वॉज हर बुक्स दैट सुलेखा सोल्ड। तो एक ही सेंटेंस को हम क्लेफ्ट में दो टाइप से बना सकते हैं, या तो हम कह सकते हैं वो सुलेखा थी जिसने अपनी बुक्स बेच दी, या इट वॉज हर बुक्स दैट सुलेखा सोल्ड, वो बुक्स थी जो सुलेखा ने बेच दी। इंस्टेड ऑफ गिविंग अ सिंपल सेंटेंस हमने क्लेफ्ट बना लिया इनको, ठीक है। बहुत इजी है, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है एंड यू विल बी एबल टू डू इट। नेक्स्ट पे चलते हैं। सम चिल्ड्रन ब्रोक माई ग्लास, कुछ बच्चों ने मेरा शीशा तोड़ दिया, जनरल सेंटेंस है। इट वॉज सम चिल्ड्रन हु ब्रोक माई ग्लास, या फिर इट वॉज माई ग्लास दैट सम चिल्ड्रन ब्रोक। समझ रहे हो, ये क्लेफ्ट है। व्हेन आप एक नॉर्मल सेंटेंस को दो पार्ट में यू आर डिवाइडिंग इट, डिवाइड कर रहे हो, स्प्लिट कर रहे हो, ठीक है। मैं आपको एक जनरल आइडिया दे सकती हूँ, आपको इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज ऑफ द टाइम रिस्ट्रेंट अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग। मैं आपको सब कुछ नहीं समझा सकती हूँ, बट विद दिस सीरीज आपको ये सीरीज देख देख कर आपको काफ़ी चीज़ें काफ़ी याद रहेंगी, काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। सो अगर हम यहाँ पर वापस आए क्वेश्चन पे, द कैट चेज्ड द रैट, नॉर्मल, ये नॉर्मल, सॉरी, दीज आर द नॉर्मल सेंटेंसेस जो आप पढ़ रहे हो, दीज आर द नॉर्मल सेंटेंसेस, ठीक है। इसमें कोई एम्फेसिस नहीं है, कैट चेज द रैट। तो अगर हमने क्लेफ्ट बनाना हो तो इट इज द कैट दैट चेज्ड द रैट,
ठीक है. सो ऐसे ही द एथलीट ब्रोक द रिकॉर्ड, ठीक है. इट इज द एथलीट दैट ब्रोक द रिकॉर्ड. या फिर हम क्या कर सकते हैं, इट इज द रैट दैट वाज चेस्ड बाय द कैट. ठीक है, ऐसे हम क्लेफ्ट सेंटेंसेस बना सकते हैं. ठीक है, इसका आंसर क्लेफ्ट है. अब मैं आपको सूडो क्लेफ्ट और समझा देती हूँ, क्योंकि क्लेफ्ट के साथ बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है. अब आप क्लेफ्ट के एग्जाम्पल्स जब देखोगे, आप देखोगे ये कहाँ से शुरू हो रहे हैं. इट वॉज, इट इज, बेसिकली इट से स्टार्ट हो रहे हैं मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस. ठीक है, बट वंस वी कम टू सूडो क्लेफ्ट, ठीक है, सूडो क्लेफ्ट मतलब जो जेन्युइन ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है एक्चुअली में. ठीक है, तो व्हेन वी कम टू सूडो क्लेफ्ट, WH यूज होता है. WH से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं. What John did was break a window. What से स्टार्ट हो गया. Whom John will see is a neurologist. ठीक है. Whoever broke the window will be sorry. Whatever, चाहे what हो, whom हो, whoever हो, whatever हो, जब भी सेंटेंस आपका WH से स्टार्ट होता है, what, whom, whoever, whatever, wherever, ठीक है, जब भी WH से स्टार्ट होगा, देन आपको बिना देखे समझ जाना चाहिए कि ये हमारा सूडो क्लेफ्ट है. इट से स्टार्ट होगा तो आपका क्लेफ्ट है, और WH से स्टार्ट होगा तो इट विल बी सूडो क्लेफ्ट. ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लेफ्ट एंड सूडो क्लेफ्ट. आज आप इस पे थोड़ा सा रिसर्च करके थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो. सो वी सॉल्व सम वेरियस डिफरेंट जॉनरास क्वेश्चंस. आपको इससे ज़रूर आइडिया मिला होगा कि आगे आपको कैसे अपनी गेट की तैयारी करनी है. इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल बी सॉल्विंग मोर क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस लेकर आएंगे, अलग अलग फील्ड से लेकर आएंगे, एंड देन वी विल बी डीलिंग विद मोर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, सो आई एम पल्लवी फ्रॉम अव्यान IAS अकेडमी. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियो. आपको मेरी ये वीडियोस गेट एग्ज़ाम क्लियर करने में बहुत हेल्प करेंगी. एंड देन यू विल रिमेंबर योर पल्लवी मैम दैट वो रोज़ क्वेश्चंस लेकर आती थी, रोज़ नए नए टॉपिक समझाती थी. इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है, इससे हमें समझ में भी आता है हमें क्या पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. आपकी आधी मेहनत मैं कर रही हूँ, अब आधी मेहनत आप करें. इस वीडियो को प्लीज़ देखें और इसके हिसाब से अपनी तैयारी स्टार्ट करें. थैंक यू वेरी मच. सी यू इन दी अनदर सेशन. थैंक यू.